Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today I want to discuss some basic skills of leadership and management. When we listen about leadership and management, then we imagine or think that these skills are related to the high businessmen, high potential businessmen, or high officials. But I think these skills are necessary, especially for teachers in education purpose. Because I want to discuss leadership and management according to the teacher point of views. Because as a teacher, when we go into the class and we deliver lectures in front of 100 students, then 100 students see us, they copy our behavior. Many students idolize their teachers. So I think that we should learn these leaderships and management skills. We should develop leadership skills in our personalities because we are preparing the next generations. We are imparting our knowledge to the students. Students copy our behaviors, they idolize us. We are the role models for many students, directly or indirectly. So I think that we should learn and develop these necessary skills in our personalities. It is also useful for us to move forward progressively and ignore the minor problem creating difficulties in our lives, in our daily routine lives. Okay? Now I want to start my this video with the famous quote of a person that if you want to succeed for 1 year, then grow crops. And if you want to succeed for 10 years, then grow trees. But if you want to succeed for 100 years, then grow leaders. Okay? Because we as a teachers are serving the nation, we are preparing the students. We should prepare our students for the leaderships. Okay? Therefore, I have summarized some basic skills that we should develop in our personalities being as a teacher. Now I want to discuss some of them. Okay. These are the basic skills that we should develop in our personalities being as a teacher. First, always analysis yourself. Where is I am today? Where would I like to go? We should and we have to prepare our students for the next generations. हम अपने students को तैयार कर होते हैं futures के लिए. हमारे students में से doctors होते हैं, engineers होते हैं, pilot होते हैं मुस्तकबिल के लिए. तो remember that things that talent or potential is not in the field but in the persons. How the person is, how the person have potential, how he is competent. ठीक है? We have to prepare leaders in our students. ठीक है? स्टूडेंट्स को बताना है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे, कि आप किस लेवल पर हैं. ठीक है? आपके पेरेंट्स ने आपको कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं एंड वेयर यू वांट टू गो, और आप किस लेवल पर जाना चाहते हैं. ठीक है? और उस लेवल पर जाने के लिए आपको कौन कौन सी रिसोर्सेज ज़रूरत है. ठीक है? आप कैसे अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं. ठीक है? दिस थिंग्स इज रिलेटेड टू दी प्लानिंग, कि यू हैव टू सेट योर माइंड सेट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स. कि आपने अपना माइंड सेट बनाना होता है कि यार मैंने इस लेवल पर इस टास्क तक जाना है. ठीक है? और ये चीज़ स्टूडेंट्स में भी क्रिएट करनी होती है कि वो अपना एनालिसिस करें कि हम किस लेवल पर हैं, हमने क्या चीज़ अचीव की है और हम किस लेवल पर जाना चाहते हैं. ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रेडिशनल रूटीन से आप एक चीज़ कर रहे हो और आप एक हाई टारगेट लेवल जो है वो अचीव कर सकें. ठीक है? सेकंड थिंग इज व्हाट इज माय स्ट्रेटजी टू गेट प्लान टू बी टू नेक्स्ट स्टेप. ठीक है? मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, कि इफ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, इफ आई वांट टू अचीव द नेक्स्ट लेवल,
व्हाट इज माय स्ट्रेटजी, ठीक है। द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, to remove my deficiencies from the student point of view or from the teacher point of view, to polish my abilities, to polish myself, कि अपने अंदर चेंजिंग लानी है, अपनी प्लानिंग सेट करना है, ठीक है, अपना टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है। सो अचीव द सक्सेस इन लाइफ, achieve the success in our career, first we have to focus ourselves, that what changing should we require in our personalities, what communication skills we have to develop in ourselves, what deficiency we have to remove from ourselves, कि यार लोग क्यों मेरी बात नहीं सुनते, ठीक है, मुझे क्यों चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। वी हैव टू एनालिसिस दीज थिंग्स, कि हमें इन चीज़ों का एक पॉजिटिव वे से एनालिसिस करना होता है और अपनी स्ट्रेटजी और नेक्स्ट प्लान की वो तैयार करनी होती है, ठीक है। थर्ड है लीडर शुड फोकस ऑन चेंजिंग इंस्टेड ऑफ रिजल्ट, ठीक है। व्हेन यू वांट टू मेक इफेक्टिव रिजल्ट, जब आप एक अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं, अमूमन क्या होता है कि लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। लीडर शुड फोकस ऑन चेंजिंग द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डेली रूटीन चेंज करें, पॉजिटिव चेंज करें, उसमें रेवोल्यूशन लाएं, ठीक है। जब सिस्टम डेली रूटीन चेंज होगी उसका रिजल्ट खुद ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट ठीक हो जाएगा। एक चीज 20 साल से चल रही है, एक चीज 10 साल से चल रही है, वो 10 साल से एक जैसा रिजल्ट दे रही है, ठीक है। अब आपने उस रिजल्ट को इम्प्रूव करना है। अब बता क्या है, हम उस चीज़ को उसी तरह चलाते रहते हैं। जब हम उस चीज़ को उसी डेली रूटीन में चलाएंगे, उस चीज़ को उसी टाइम पीरियड के साथ चलाएंगे, उस चीज़ को उसी पंक्चुअलिटी के साथ चलाएंगे, तो देयर विल बी सेम रिजल्ट्स, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स, वी हैव टू चेंज द रेवोल्यूशनरी स्टेप, हमें उसमें इनकलाबी चेंजिंग लानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा, उस पूरे प्लान को चेंज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम, बट वी कैन चेंज द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, we can change the behavior of the persons working in that system, ठीक है। if you want to get the fruitful results, I have already told, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल से एक चीज़ चली आ रही है, एक टाइम टेबल एक स्केड्यूल चला आ रहा है, ये एक रूटीन वर्क चला आ रहा है, उसी रूटीन वर्क को आप कंटिन्यू करें और आप इफेक्टिव रिजल्ट हासिल कर लें, ठीक है। व्हेन यू फोकस ऑन चेंजिंग, देयर विल बी फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन फ्यूचर। जब भी आप सिस्टम का बिहेवियर चेंज करेंगे, पर्सनल्स का बिहेवियर चेंज करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है लीडर्स सेट हिमसेल्फ एज एन एग्जांपल, लीडर्स आर नॉट डूइंग बाय इंटीमेशन बट बाय इनविटेशंस, ठीक है। दिस इज द सिंपल पॉइंट आई वांट टू सेट, दैट थिंग्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम माई सेल्फ। if you want to change the system behavior, if I want to change the performance of the system, then first I would change myself, then first I would set the example of myself, because the person who are following me, they will copy my behavior. If I am not doing the right things, then how can I expect the people, then how can I expect the students that they will perform their duties vigilantly or actively. So remember, it always starts from ourselves, and it is the responsibilities of leaders कि he should take decision at right time, ठीक है, कि वो हमेशा राइट टाइम पे डिसीजन लेता है। एक चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, और बास का दिया अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि इंसान के जहन में एक आइडिया आ जाता है कि यार ये मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ तो इससे इन स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, या यूँ मेरे साथ के जो कोलीग हैं उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा,
या ये चीज़ फ्यूचर में आगे जो है ना हमारे लिए यूज़फुल होगी, ठीक है। तो ही शुड टेक इनिशिएटिव, ही शुड टेक स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड, एंड ही शुड आल्सो फैसिलिटेट अदर colleagues to move in this direction, ठीक है। दिस इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ, ऑलवेज encourage motivated team members, ठीक है। जनरली सम all persons are not at the same levels. Some person have talent potential to move forwards. It is the responsibility of leaders, it is the main responsibility of leader to identify that persons and encourage them. बाज़ किसी एक बंदे के प्लान से, किसी एक बंदे के इनिशिएटिव से, एफर्ट से पूरे सिस्टम को फ़ायदा पहुंचता है। तो लीडर्स का काम है कि वो जो मोटिवेटेड, जो टीम मेंबर्स को मोटिवेट करे, और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको इनकरेज करे, ठीक है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग टीम टू अचीव द मैक्सिमम गुड टास्क और फ्रूटफुल रिजल्ट्स। एक सिंगल बंदा काम नहीं कर सकता, हमें एक टीम डेवलप करनी पड़ती है, और टीम में हर बंदा का एक लेवल नहीं होता। जो पोटेंशियल बंदे, जो कॉम्पिटेंट बंदे हैं, एक लीडर्स को या एक हेड को या एक टीचर्स को, कि अगर वो देखता है कि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंट है, टीचर्स देखता है कि किसी स्टूडेंट्स में कोई स्किल्स है, जो यूनिकली स्किल्स है, जो बाकी से डिफरेंट है, तो ही शुड पॉलिश दैट स्किल, he should encourage he or she should encourage the student to move in this direction that are purposeful and that are beneficial for the nations or for the other students. Next thing is, someone is very good at planning but not good at execution or implementation. This is very important thing that I think, because generally we make the plans, we make the plan for changing the system behavior, we make the plan for daily routine, schedule, timetable, punctually, but when we implement it, we cannot implement it 100% due to many reasons, or we can say that when our implementation fails, हमारी implementation fail हो जाती है, ठीक है, तो we cannot achieve the target. For that purpose we have implementation plan A, plan B, plan C. कि अगर प्लान ए, अगर हमारा ये टास्क है, ये काम है, हमने उसको स्केजुलिंग की, इस तरह हो रहा है, अगर वो काम उसका पूरा नहीं हो रहा, तो हमारे पास उसका प्लान बी और प्लान सी भी होना चाहिए, या प्लान बी में ऐसे काम होगा, ठीक है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, कि वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले। कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है कि वी हैव द प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग, but we have not implementation plan, we have not implementation skills, or we can say that in some cases we don't want to implement it. तो we should, जितना हम प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, प्लानिंग के बाद उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है, कि यार ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ठीक है। और एक कॉमन सी बात है कि जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जब भी कोई नया टास्क आता है, तो फर्स्ट मैनी पीपल और मैनी स्टूडेंट उसको रजिस्ट करते हैं, बट व्हेन वी सी दैट इट इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, देन दे आर, तो सब तैयार हो जाते हैं उसको करने के लिए, और सब उसको पर अमल शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, 7 point is the best communication skills. It is very necessary point कि our leaders or a person who is leading the team or a head who is leading the institution, either is an educational institution or a business institution, he should listen every person point of view with humble and with patience. It is very important thing that leaders, either he is a head of an institution or is the manager of any business institution, he should listen every person point of view with humble and patience. इसकी एक बेस्ट एग्जांपल कुरान मजीद से दी जा सकती है कि
कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो एक जलील उल कदर पैगंबर थे और बड़ी शाहाना उनको अल्लाह ताला ने सल्तनत अता की हुई थी, जब वो अपने लश्कर के साथ आ रहे थे तो एक चूंटी ने अपने साथियों को कहा कि सलमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है तो आप सब जो है वो बिलों में चले जाओ। तो क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनको सलाहियत दी गई थी कि वो चूंटी की बात भी, वो जानवरों की भी और परिंदों की बात सुन सकते थे, उनकी कम्युनिकेशन सुन सकते थे। तो ये उनकी अल्लाह पाक की तरफ से उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स थी। तो उन्होंने उस लश्कर का जो रूट जो है, जो प्लान जो है, रूट वो चेंज कर दिया था कि यार चलो हमारे लश्कर की वजह से चूंटियों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो समटाइम्स कि एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम सा पर्सन जिसकी इदारे में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वर्थ नहीं होती, ठीक है, एक आम स्टूडेंट्स एक इतना इफेक्टिव आपको डिसीजन, इतना इफेक्टिव आपको पॉइंट बताया जाता है, इतना अच्छा आपको मशवरा दिया जाता है कि उससे पूरे सिस्टम की जो है वो उसका सर्वाइवल होता है। तो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि आ लीडर शुड बी अ गुड लिसनर, कि जो लीडर्स है उसको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए और उसको ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए कि एक इदारे में हर पर्सन, इसी तरह टीचर को भी, कि हर स्टूडेंट्स, हर पर्सन, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से, अपनी प्रॉब्लम्स को एक फ्री रिलैक्स अंदाज में अपने लीडर से, अपने टीचर से, अपने बॉस से, अपने हेड से शेयर कर सके और उसको पता हो कि वो, उसके जहन में हो कि यार ही वुड रियलाइज मी, कि वो एहसास करेगा, ठीक है, ही वुड रियलाइज माई फीलिंग्स, ठीक है, और मेरी बात सुनेगा और उसको कुछ ना कुछ उसका कंपनसेट करेगा। These are the skills. There are hundred of skills for leadership and management, but I have described few skills according to the educational point of view, yeah, according to the my point of view, that these things are necessary in an institution. If there is absence of leaderships, if there is no leadership in an institutions, either education or business, then there will be a great problems. एक पर्सन होगा जो इनकम्पिटेंट, उनमें से वो लीडर बन जाएगा, ही विल क्रिएट द प्रॉब्लम्स फॉर द इंस्टीट्यूशन, एंड देयर वुड बी थ्री थिंग्स इन इंस्टीट्यूशन। अगर एक अच्छा लीडरशिप नहीं है किसी भी इदारे में, तो उसमें ये तीन बेसिक उसमें डिफिकल्टीज होंगी। फर्स्ट है ग्रेट कन्फ्यूजन्स, ठीक है, नो टास्क आर डिवाइडेड, टास्क डिवाइडेड नहीं होंगे, नो पर्सन विल फील रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर विल बी ग्रेट कन्फ्यूजन फॉर एवरी वर्क डन, हर काम के लिए कन्फ्यूजन होगी, कैसे होगा, किसने करना है, कौन करना है, बिकॉज टास्क आर नॉट डिवाइडेड प्रॉपरली। सेकेंड थिंग इज फ्रिक्शन और ग्रुपिंग ऑन एनी बेसिस, एक लीडरशिप ना होने की वजह से उस अदारे में फ्रिक्शन होगी, ग्रुपिंग ऑन एनी बेसिस, पॉलिटिकल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, या वैसी यानी हो सकती है, विद नो रीजंस, ठीक है, और इन दोनों चीज़ों की वजह से ऑल दी पर्सन आर अंडर परफॉर्मेंस, कि जो लोग 100% रिजल्ट दे सकते हैं, जो लोग अपनी एबिलिटी, अपना पोटेंशियल शो कर सकते हैं, वो भी इन चीज़ों की वजह से वो भी अपनी परफॉर्मेंस 100% शो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। नो, आई वुड लाइक टू समराइज all these things, that for good leadership and management skills, we all need to learn these leaders and management skills in our personality, to develop ourselves and to impart our knowledge into the students in an effective way, because we are preparing the next generation of the students that they have lead to the nations. These are the basic skill. First we have analysis yourself, that where I am today and where would I like to go, कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहाँ जाना है, what are the future of my career, मेरा career की future क्या है, what are the aspects, what are the strategy, what are the plannings, मैं किस प्लानिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट इमेजिनेशंस, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक चीज़ का आइडिया बना लूँ, वो चीज़ मैं अचीव कर लूँ। वी हैव टू प्लान ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, ठीक है, कि मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर उसकी प्लानिंग करनी है, कि मैंने एक टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, उन पैरामीटर्स, उन फैक्टर्स के ऊपर काम करते हुए उसके ऊपर मैंने आगे मूव करना है, ठीक है।
Next, a leader should focus on changing instead of results. When you want to get the extraordinary results, then you need extraordinary change in your system. You need extraordinary change in your personal behavior working in that systems. ठीक है, जो चीज़ 8 10 12 साल से जैसे चली आ रही उसको वैसे चलाते रहें तो उसी तरह रिजल्ट आएगा जैसे पहले आ रहा है। जब तक आप उस सिस्टम में रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे, उसमें पर्सनल बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गेट द इफेक्टिव रिजल्ट। इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए यू हैव टू चेंज, यू मस्ट चेंज द सिस्टम बिहेवियर एंड यू मस्ट चेंज द इम्प्लीमेंटेशन प्लान and you must change the daily routine process of that system. Leader set himself as an example. Leader are not doing by intimation or but by invitations. कि सबसे पहले जो आप काम खुद करते हैं, खुद करके दिखाते हैं, देन द पर्सन, ठीक है, वर्किंग अंडर यू आर फॉलोइंग यू, वो पर्सन जो आपके अंडर काम करें या वो स्टूडेंट जो टीचर को देख रहे हैं, फिर वो देखते हैं जब टीचर एक काम इतना इफेक्टिव वे में कर रहा है, फिर एक वो स्टूडेंट्स भी वो काम उसी तरह इफेक्टिव वे में करते हैं, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर कॉपिंग अवर बिहेवियर, वी आर द रोल मॉडल ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जनरल इन अवर एजुकेशन इज दैट we are very good planners, we make plans but we have no implementation scheme, or we can say that we are failed in implementation due to many reasons, right? For example, if there is any crisis, corona, let's see corona crisis due to lockdown, then leader should have the plan A and B and C. Okay, what is the plan A for effective daily routine work? Yeah, what is plan B for effective doing work? First, leader should take the initiative steps, then all the team members would follow him. Next point is the best communication skill. It is a very important skill. A good leader should be a good listener. The every person in an